applicable to all the entrepreneurs. So last time also I took that session, particularly this subject on to all the TBI participants. And what I found was, after having a discussion with them, what I found is more than how to develop a business model, you all know, you all have some product, you all have some services in mind. I am going to touch upon few pointers today, which are important aspects to be kept in mind while developing a business model. So we'll make it interactive session. I don't want to, share the screen, and I don't want you to get diluted onto the screen per se. I want you to be with me. If you can open up your videos or something, maybe I can see you, you can see me, and let's make it more interactive. We have 2 hours to interact with each other. And believe me, some of the pointers which I have learned hard way in these many years, I have completed a journey, you can say officially, that I have started my career as a professional. Then I became a venture capitalist. I've been an investor. When I came to IIT, BHU, I was a venture capitalist. Then I did my own startups. I grew it, I sold it. I am doing my own startups now. And I'm also a consultant, investment banker and management consultant right now. So I can say that I have been on the all sides of the table. Entrepreneur seeking the money, investment banker trying to tie the knot between both the parties, and also as an investor where I evaluated the startups from investment point of view. When we want to grow the startups, there are 2 aspects of it. One is a customer aspect, consumer aspect, where we want consumers to be happy, which is an important aspect to be kept in mind while developing a business model. The second is we develop a plan and business model which helps you to make impact, have right money in place to make business sustainable. You be a successful entrepreneur and you grow from maybe you grow your wealth from maybe $1 lakh to $1 billion. For that, you need to also consider the perception of the giver, investor, so as to say. So there is always a juggling between these 2. कि कस्टमर का ध्यान रख के कस्टमर को अफोर्डेबल हो, मुझे भी अफोर्डेबल हो, 5-10%, 15% का मार्जिन रख के, अगर मैं I hope Hindi is okay to all. Sorry, I started speaking in Hindi, but I hope Hindi is okay to all. So it will be a combination of Hindi and English. Yes, sir. It could be bilingual. So sure. Thank you so much. Thank you so much. So when we essentially go to any customer, what we want is to make our product and services so affordable so that maximum customers buy it. At the same time, when we go to investors, there are a handful of investors in India. Those investors have again a handful of money, not so much. And you are in a race to prove that your startup, your idea, your business model is better than many, so that you should get the money. Typically, as a VC, as an angel investor, I can say, we cannot invest even 1% of total applications that we receive for getting for the fund. If I get 100, I invest in 1 or 2.
which essentially means how can you be amongst top 2? If you go to VC, even percentage is more skewed. How can I be in that 1% who will get funds? We read lot of news where we say, okay, this many startups have got funds. But we don't read news where we listen to, oh, this many startups would have got funds. They haven't got funds. Lot of startups having patents in place, they haven't got funds. Lot of businesses are really making good money for themselves, but for growth, they are not in a position to arrange next round of money. They say, यार यहाँ पे तो कर लिया, अभी next round पे जाना है मुझे, तो I have a lot of problem because I don't have money, and nobody is giving them money. So what makes you create a business model which is widely accepted by the customers and consumers also, and also your investor lobby, also you make a good wealth for yourself, and also you can give a good money to your employees, maybe 5, 10, 50, 100, 200, 500. Whosoever people who are living their livelihood through your business, it is your duty to even give them a reasonably good amount which can take care of their basic life as well as their basic dreams. So with these particular aspects in mind, business model is a very, very crucial model. कि क्या प्राइसिंग रखना है, क्या बेचना है, कितना रिटर्न रखना है, कैसे इन्वेस्टर को मैनेज करना, all these aspects. So out of many important pointers, I have calibrated 9 points for you. And these 9 points are going to be the key, where every point can be a subject in itself. But we will talk about the important aspect under that point. So first, I'm sure many have been, all of you are aware about this point. I will just give you a little bit of different aspect to it. First is, what is a problem? Now, what we misinterpret is we consider gap as a problem. See, when it comes to English literature, we understand that problem is different, need is different, gap is different. But when it comes to business, for us, gap is a need. Many a times, I have asked a question that what is the problem? And the answer that I have got is the gap. Answer I have got is need. Let me be honest. The right solution will come only if you ask if you address the right problem. So how do we define a problem? The problem is, again, is where people are facing issues in their day-to-day life of either business or their routine life. There is no solution, there is no alternative, or alternative is either costly, alternative is either cumbersome, or it is rare or scarce. So what is the problem? Problem is genuine problem. Then we don't say कि यहाँ पे ये लोगों को चाहिए but मिल नहीं रहा है, तो ये चाहिए ये आपने डिफाइन किया. पहले देखो कि यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है. Let's look at the problem first. When you look at the problem, then we come up with the solution. So problem and solution is the first point. Can we come up with the solution? Solution is either product or service. But then
My important point number 2 is need for the solution. क्या होता है, हम कई बार नीड को इग्नोर करते हैं. वी फील, क्यों मैं आपको बता रहा हूं कैसे. वी फील देयर इज अ गैप इन द मार्केट. बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं मैं. वी फील देयर इज अ गैप इन द मार्केट. You should ask a question, is there any market in that gap? हर गैप मार्केट नहीं है, और जब तक वो गैप मार्केट नहीं होगा तब तक वो गैप को एड्रेस करके कोई फायदा नहीं है. So first point, problem and solution. Second is we need to address the need. How do we address the need? We need to ask this very simple question to ourselves. If there is any gap in the market, yes, then whether there is any market in that gap. And I hope I am making the point clear कि अगर मार्केट में वो गैप नहीं है, दिक्कत आएगी. राइट, लोग परचेज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट लेके घूमोगे, सेल करने में दिक्कत आएगी. लोग बोलेंगे हाँ चीज अच्छी है, बट लोग बोलेंगे इसके बिना भी मेरा गुजारा चल सकता है. आई डोंट रियली नीड दिस थिंग. Then there is a gap, but there is no market in that gap. It is not a priority for people. People will not spend for it. People have accepted the fact that we can do without this. We can operate without it. And when you can do without it, when you can operate without it, let me tell you, you won't get money. Point number 2, very clear. Now, to understand the problem and solution in a very, very crisp manner, the third important aspect is to understand, that is my third point. Third important aspect is to understand competitors. You all are senior. Many of you have actually plunged into entrepreneurship since a long. I generally ask these questions to quite a few youngsters, but nevertheless, importance doesn't go down. You might have heard that in aviation industry, Indigo Airlines is, so as to say, very successful airline. Can you please tell me who are the competitors of Indigo? Competitors of Indigo Airlines. Maybe you can discuss it out. SpiceJet. Okay. Go Air. Go Air Air. India. Air India. Vistara. Vistara. Yeah. Others? Low cost. Yeah, I mean, internationally, Emirates and others are also competitors. Air Asia. Air Asia, Emirates, low cost. Okay. Let me change your perception a bit. Again, what we jumped onto is who are providing these services. Again, directly solution. What Indigo does. Have to look at railways also, another mode of transport as competitors. Bang on, Chetan. So you have reached the next level of understanding where you are talking about railways and other mode of transportation can also be considered as the competitor for Indigo. People do travel morning, evening. Indigo's connectivity morning, evening across tier 1, tier 2 cities are really amazing in India. And stage 2, as Chetan rightly said, that we need to look at other mode of transportation also. Now let's look at this further in depth. Why do we travel morning, evening? Then we travel morning, evening to conduct 1 or 2 meetings a day.
maybe to sign couple of documents, maybe to sit across the people, or let me also tell you, maybe to deliver a lecture. We travel morning, evening. Now, who can be the competitor? Zoom and others as well. Bang on. So when Indigo decided Zoom was not there, at the time Skype was there. And for Indigo, Skype was also considered to be one of the competitors. Now we have Zoom, we have Google Duo, Meet, multiple things. Microsoft Team. Guys, इसका मतलब क्या है? आज जब मैं 2015 से लेके हर साल BHU आता था, आज आप और मैं यहाँ पे बैठ के यही सेशन डिस्कस कर रहे हैं. The only difference of those days and today is I am not seeing too many faces. I used to see too many faces because you have kept your video off. Rest everything is what I was supposed to speak there, I am speaking here. What you are supposed to listen, you are listening and I am listening. I am talking. Which essentially means कि आज अगर कोई बंदा 10,000 रुपए का राउंड ट्रिप बुक करता है मॉर्निंग इवनिंग और वो जाके सिर्फ 2 मीटिंग करता है 1-1 घंटे की, अगर बेंगलोर में जाते हो तो 1 घंटे की मीटिंग करने के लिए भी पूरा दिन आपको कम पड़ता है. ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल. Bombay, Delhi, 2 to 3 meetings, and that's it. If you travel from outside. But if you are sitting in your city, through Zoom, through Skype, you can do 2-3. So, my question is, Indigo has identified right competitors for their problem, for their services. Have you gone back to the traditional methods of maybe farming and traditional methods of how your customers used to deal? From that, and why they were doing that method, what was the problem for which they were doing? What was the need for which they were doing? What was the solution that they were using? और क्या वो affordability पे आपका solution है क्या? I hope I am making some point. I'm trying to take you through the thought process, particularly onto understanding how are you addressing it, your product or your solution. I'm not aware about which products you are dealing with. I am also not aware about which problems you are dealing with. I am talking about hardcore one thing. आपने आपका प्रोडक्ट बनाया, आपने आपका सर्विसेज सॉल्यूशन बनाया, क्या वो प्रोडक्ट सर्विस और सॉल्यूशन का रिप्लेसमेंट आपने जो इंडिगो ने स्काइप या जूम पे सोचा, आपने आपके प्रोडक्ट के लिए सोचा? अगर नहीं तो प्लीज requesting you guys to spare some time on that. Number one, because if you don't identify in a right fashion, let me tell you, have you studied BMC, business model canvas? So we have that session scheduled, but later they have not. Okay. So that is yet to come. Yet to come. Yes. That's why I haven't. But most of them have a basic idea about the BMC. BMC. Okay. So I was aware about broadly that BMC is somewhere in the curriculum. So I don't generally take BMC, and that's why I take the business model development will happen in business model canvas. All the aspects are there, but these are the aspects which are a little bit beyond the business model canvas. We have been doing BMC since years, right? So again, coming to first important pointers, problem and solution, addressing the right problem rather than any other thing. Then point number 2, find out the market in the gap. बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, not the gap in the market, but the market in the gap. गैप है तब आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो,
अब उसके अंदर मार्केट है कि नहीं है. Then ask question, who are your competitors? Ask question Indigo way, right? कि मेरे एक्चुअल में कॉम्पिटिटर कौन है. Then come point number 4 and have product and services which satisfies your customers and or consumers. There is a difference between consumer and customer, no need to explain, right? Babies are consumers and parents are customers. Those who pay are customers, those who use are consumers. It is said the best of the global giants, may it be Apple, Tim Cook, or Steve Jobs, or maybe other people, or maybe including Satya Nadella and all. It is Elon Musk and all. It is commonly said that nearly 30 to 35% time, that is 1/3 time, of these giants are spent only on the product with a single perception. क्या कस्टमर और कंज्यूमर इसके लिए हैप्पी होंगे एंड क्या उसके लिए पे करेंगे. सो नाउ लुक एट योर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन. May it be linguistic issues are there, may it be usability issues are there, may it be aesthetic issues are there, if at all product is there, may it be, if a technology, then UI UX matter is there, may it be even just visual appealing is the matter, may it be, ease of operation is the matter, whatever, and even financing, funding is a problem. Whatever is the issue, address it all, but address it very correctly. Interact with your customers and consumers. Be a part of them. Try understanding. Just I was seeing one video, not so relevant, but not absolutely abstract. Rolls-Royce, the car company, has created a car of 200 crore rupee. Just seen that video today. 200 crore. Whether car is a gold studded? No. Diamond studded? No. Whether it is silver based or very precious stone? Nothing. Then why 200 crore? We are talking about a car. Though it's a Rolls-Royce, but it's a car. Then Rolls-Royce have interacted with their customers and asked, what do you want in the car? Some people said that I own a private jet and I want कि जब मैं private jet में बैठता हूँ और ऊपर देखता हूँ और जो मुझे visuals दिखाई देते हैं, maybe sky, maybe clouds, maybe different colors of sun rays and whatever. We all know nature has got many colors. I want to see that in a car as well. Fine. He interacted with people also, other people also. And some said, I want an aesthetic. I want a smoothness. Like I am riding my private yacht. तो क्या किया? ये बोला कि yacht चाहिए तो yacht purchase कर ही लो, क्या फर्क पड़ता है? Private jet तो है ही आपके पास, क्या फर्क पड़ता है? No. Went down, created a Rolls-Royce which has a rooftop of private jet, which has an aesthetic look like you are in a yacht. There is all the party material in there, right? There are all the, cooking storage and, all the
Best of the aesthetics you can think of. But the price of that car is 200 crore. And believe me, there will be few people who might be buying also. What I'm trying to say is how many people will buy, what is the market segment, and what they are doing is not relevant. What is important is even companies like Rolls-Royce are taking time to interact with consumers and customers, want to see what they want to buy, and they want to create a product accordingly. I am asking all of you, क्या आपकी प्रोडक्ट अभी आपके कस्टमर्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है? हाँ, तो पॉइंट नंबर 2, आप इसके अंदर और क्या दे सकते हो कि जो कस्टमर्स ने सोचा भी नहीं है, बट स्टिल इट विल मेक देयर लाइफ इजी. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, see, people were satisfied when iPhone 3, 4 also came in the hand. OnePlus 1, OnePlus 2 was also there in the hand. But why these models are constantly improving? Because customers and consumers are ultimately humans who wants a change, who wants an upgradation every few years, maybe months, maybe days. That depends on the person to person. We are not getting there. But the point remains, क्या आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज सॉल्यूशन में एडिशन है? क्या 100% सेटिस्फैक्टरी है? क्या प्राइसिंग अप्रोप्रिएट है? ये सारा आपको देखना है. So again, consumer and customer centric approach should be there. Now, point number 5. I am from a finance background. Chartered accountancy and company secretary is the background. But I can tell you one thing, and I'm sure every one of you will agree to it, and that is cash flow is a king. So अगर आप में कोई इनोवेटर है, तो pardon me, but there is no end to innovation quotient in the innovators. But there is a point where we say enough of innovation now. This is a version 1. Take it in the market, leverage it, commercialize it, start making money. Simultaneously, your R&D division or maybe your own thrust towards R&D will continue to happen, continue to progress, and you will continue to bring better and better innovations which will add up to your either existing product or create a new product portfolio. Problem kahan hota hai? I have worked with tremendous number of scientists, and they are hell of a amazing brains, no doubt. And I salute to them because of their innovations, the country like India is growing as well. But if I see at the end of the day, 90% of the innovations are kept in cupboards, lock and key. More than 90% patents are not utilized. Again, lock and key. Now, what is the use? Probably no use. Will this grow them or anyone? No. Will your efforts of finding something new has helped humanity? No. So whether it is really making any sense? No. What is important is, जितना भी product है, जाओ, जाके बेचो, monetize करो. See to it how market is reacting. See to it how market is responding to it. How are you growing your market? Guys, let me be very honest.
अगर अच्छा कैश फ्लो नहीं है तो इन्वेस्टर्स को भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर अच्छा कैश फ्लो नहीं है तो घर भी नहीं चलेगा आपका। अगर अच्छा कैश फ्लो नहीं है तो एम्प्लॉइज भी नहीं सस्टेन कर पाओगे आप। और गॉन आर द डेज जब सिर्फ इन्वेस्टर के पैसों से लोग जीते थे। आपको टॉप लाइन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सो कैश बर्निंग मॉडल है तो उसमें थोड़ा मॉड्यूल चेंज करो। बिजनेस मॉडल कैश बर्निंग बहुत कम है जो चलते हैं। बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो कैश के ऊपर ही चलते हैं। We cannot deviate from our original goal of making money in the process of serving society should be undermined. क्योंकि मेरा बहुत ही सिंपल मानना है, I will not invest in a startup if startup doesn't know from where they are going to make good money out of good money. Because मैं एक चीज बताता हूँ, एज एन इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो what I will be seeing, मैंने अपने आप को सिक्योर किया है। मेरे बिजनेसेस में जो रिक्वायरमेंट था उसको मैंने फुलफिल किया है। मेरे घर की रिक्वायरमेंट थी, मेरा फ्यूचर का कमिटमेंट सेविंग था, वो सेटिस्फाई किया है। लाइफ में थोड़ा जलसा करना था, घूमना था, दुनिया घूमना था, वो मैंने खत्म किया है। उसके बाद मुझे अगर कहीं पे जाके कैसीनो में भी पैसा उड़ाने की इच्छा थी, वो भी शायद मैंने किया है। ये सब करने के बावजूद मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा है और अब मैं बोलता हूँ कि अब मुझे कहीं पैसा लगाना है, तब जाके मैं शायद स्टार्टअप्स में लगाता हूँ। ये कॉमन फिनोमिना स्टार्टअप इन्वेस्टर्स का है जो इन्होंने पूरी दुनिया में अच्छा खासा पैसा अर्न करके आगे बढ़े। अभी ऐसे बंदों को एक चीज तो मालूम ही है कि कितनी भी अच्छी बातें कर लो, बॉटम लाइन इज पैसा तो बनाना ही पड़ता है। और आपको अच्छा ही छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टाटाज आर one of the best businessmen of the world. They think of the country, they think of the people, they think of the humanity, they think of the society, they think of their employees, they think of their investors, they think of everyone other than their own self. But क्या ये सब पॉसिबल होता अगर वो प्रॉफिट नहीं करते तो पहले दिन से? क्या अपना बिजनेस वो लोग बिजनेस की तरह नहीं चलाते तो ये सब कुछ पॉसिबल था? शायद नहीं था। Then what's the sense? ये बातें भी अच्छी नहीं लगेगी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं। और मैं कुछ गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूं, बट यू नीड टू मेक मनी। Unless you make money for yourself, unless you make money for your team, and unless you give something back to your investors, believe me, your business model may not survive for long. And for all these things, the only thing is आपको रेवेन्यू बढ़ाना है और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन प्रॉपर रखना है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को प्रॉपर रखने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट टू मी इज पॉइंट नंबर 6 इज राइट प्राइसिंग। गाइस एक चीज बताऊं मैं आपको, बहुत सारे स्टार्टअप को मैंने फेल होते हुए देखा है। बहुत सारे स्टार्टअप को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है और उसके सामने कई सारे स्टार्टअप को मैंने इजीली सक्सेसफुल होते हुए देखा है। तो ओनली डिफरेंस, प्रोडक्ट सब लोग बना सकते हैं, कस्टमर सबके पास है पोटेंशियल, बट कस्टमर किसको पे करेगा? और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पे करेगा। When they get a value for their money, and value for their money is equal to right pricing for you. टॉप लाइन बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, एक ही कस्टमर को बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, अपनी एक बार प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज कर ले, फिर वो किसी और के लिए ये ना सोचे, ये करने के लिए अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग का सबसे बड़ा और सबसे ड्रैकनियन इश्यू क्या है? और वो है
unless you are at a certain scale, pricing is not in your control. I'm sure you will agree. आज अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, 10 प्रोडक्ट बनाते हो, 100 प्रोडक्ट बनाते हो, 1000 प्रोडक्ट बनाते हो या 1 लाख प्रोडक्ट बनाते हो, आपके प्राइसिंग में सब्सटेंशियल डिफरेंस आएगा, यू विल अग्री. बट आपका स्केल बढ़ने से आप प्राइसिंग को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो रही है. तो शुरुआत में जब ग्रोथ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तब मार्जिन कम मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज हाई, मार्जिन्स आर लेस, और जबकि पैसे सबसे ज्यादा चाहिए. जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकने लगे, आपको चाहिए ज्यादा बेहतर मार्जिन्स, और उसके लिए आपको कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा. और प्रोडक्ट बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगी, मार्जिन और बढ़ेगा. Obviously, in the process, you will have certain additional expenses, but still you will make more money. अब आपका क्वेश्चन आता है कि शुरुआत के अंदर जब cost of raw material is high and margins are less, how do we survive the growth? Then one important aspect, at least don't go below the cost of the product. If possible, have some margins. और शुरुआत का टाइम है, तब माय नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू स्ट्रीम्स, जहां पे प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम तो आपको मालूम हो गई है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, बट जहां पे अभी आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो फाइंड आउट अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस. मे बी पॉसिबल इन सम ऑफ यू, may not be possible in all the businesses. Let me give you one example. Okay, before I give an example, sorry. It's getting too much monotonous. Am I audible to all of you? Am I clear? Am I making some sense? Do you have any question? Let me take a break of 2 minutes over here. Yeah, so Chetan here, I can maybe add one perspective to your last point. Sure. So yeah, so the for example, I'll take an example of a ceramic. So I also make ceramic materials. So sometime I get an order of, let's say I need 100 cups, tea cups for drinking. So my cost is 40 rupees. And sometime if I get an order of say 1 lakh pieces, I don't have the infrastructure to make it. So what I do is I get into a job work. So I tied up with people who have the infrastructure to make it. So my cost price automatically gets to 8 rupees. So that is how I manage that part. Fantastic, fantastic. No, but still, Chetan, if you give a larger order, no, to your third-party manufacturer also, I am sure they are making in bulk. That's why their cost is coming down to this extent. But if you make your own tailor-made product, which is also in a large quantity, what you said absolutely makes sense, right? That the moment you go to third-party, the moment you go to someone who is making, you see, 3PM, 3PL, third-party manufacturer, third-party logistics, third-party warehousing, ये सारे concepts जो है ना, these are new age concepts and काफी सारों से वैसे हो रहा है. Brand आप बनाओ, manufacturer कोई और कर रहा है. Particularly if you get into, as you rightly said, you are in a ceramic. But if you say, Gujarat is a very big market of ceramic. If you say near Morbi, it's one of the biggest market of India, ceramic market. But if you say pharmaceutical companies, if you say, let's say fertilizers in pharma, there are third-party logistics, third-party manufacturing, everything is available. What I am trying to say is, yes, if you go ahead with the right pricing, as Chetan rightly said, if you could manage his price
he will be in a position to manage his top line, he will be in a position to manage his bottom line as well. और जब वो होगा तब थोड़ा टीम बढ़ाने के लिए भी पैसा आएगा और ग्रोथ के लिए भी पैसा जाएगा, and that will make business more sustainable compared to earlier. Anyone else with any comments? Yes, sir. Yes, this is Dr. Hasan. Yeah. सर मैं ये बोला कि जस्ट यू सेड अबाउट दैट प्राइसिंग, आप प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं. इनिशियली व्हेन वी जस्ट गोइंग टू इंसर्ट द मार्केट, है ना, तो उस टाइम हम अपना ब्रांड लेके कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग करा के प्राइस को स्टेबल कर लेते हैं. राइट. देन प्राइस को स्टेबल करने के बाद हमारा मार्जिन इनिशियली छोटा होता है, राइट. क्योंकि मैंने लॉजिस्टिक्स भी कहीं से लिया है, किसी का ब्रांड अपना है, प्रोडक्ट कहीं से लिया है. देन we can push this margin a bigger. Right. How we can how I can do, जैसे मैं खुद करता हूँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि जैसे इनिशियली मैंने प्राइस को फिक्स कर दिया और एडवर्टाइजमेंट पे बहुत फोकस किया इधर से उधर से, और जब थोड़ा सा बिकने लग गया उसके बाद जब ठीक इवन इनिशियली मार्जिन वाज लेस बट ड्यू टू लॉट ऑफ सेलिंग थोड़ा सा हमको प्रॉफिट दिखा, तब मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, असेंबलिंग पर हाथ डाला. एब्सोल्युटली. तो असेंबलिंग करने से थोड़ा सा हमारा मार्जिन नीचे आया, लेकिन अगर सारे कंपोनेंट में को अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करने चाहूंगा तो वो तो मुझको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो अगर असेंबलिंग लेवल तक मेरा काम बन जाता है तो इट्स फाइन. आई थिंक थोड़ा मार्जिन है, सेलिंग ज्यादा हो रही है, दैट विल बी फाइन. एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट. जी सर. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगाने में एक नुकसान ये है कि कल को ऑल ऑफ सडन कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोरोना जैसी या कोई भी ऐसा होता है, तो हमको अपना पैसा निकाल के मार्केट से भागने की जो मोमेंट होता है वो छोटा रहता है. एग्जैक्टली. वो डर नहीं रहता है क्योंकि आपका कैपेक्स कम है, तो कैपेक्स मैनेजमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाता है. इसमें सिर्फ डर ये रहती है कि मेरा स्टॉक जो है ओवरलोडेड ना हो जाए, यानी सेलिंग नहीं हो रही है तो कम है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाना इनिशियल स्टेज पे ठीक नहीं है सर, जैसा मेरा समझ. आई एग्री. मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि सेटअप बड़ा रहता है, अगर वो पैसा अगर मार्केटिंग में लगाते हो तो यू विल बी एबल टू एक्सपांड योर मार्केट्स वेरी वेल, राइट. देन इफ यू कैन डेवलप योर टेक्नोलॉजीज व्हिच आर helping you to grow faster, you can do that also, right. थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, and then slowly and gradually एक असेंबली लाइन, जैसे आपने बोला, असेंबलिंग करने के लिए अगर आप लाइन क्रिएट करते हो, जैसे शुरुआत में अभी काफी टाइम से मैंने देख रहा हूं, मैं काफी सारे बिजनेसेस के अंदर प्रोडक्ट बाहर बनवाते हैं, बट हम सबको मालूम है कि प्रोडक्ट के साथ साथ उसका पैकेजिंग बिकता है. पैकेजिंग के मशीन्स लोग ले आते हैं और पैकेजिंग खुद करते हैं, अच्छी क्वालिटी के पैकेजिंग खुद करते हैं. करेक्ट सर. स्पेशली एग्री में जो प्रोडक्ट के मैटर नहीं करता, उसका लुक बहुत मैटर करता है. सर दिस इज अक्रॉस. आप एग्री की बात करते हो, मैंने ज्वेलरी में भी देखा है, फार्मा में भी देखा है, सब जगह पे पैकेजिंग मैटर करता है. फार्मा में जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं है और जो ओटीसी है, और आप एफएमसीजी ले लो, न्यूट्रास्यूटिकल ले लो, ठीक है, पैकेजिंग ही ज्यादा बिकता है. तो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाहर बनवा लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट को दूसरे की प्रोडक्ट से बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा वो पैकेजिंग पे ध्यान रख देते हैं और पैकेजिंग खुद से करते हैं. हाँ, और पैकेजिंग बल्क खुद से करते हैं तो पैकेजिंग का कॉस्ट कम हो जाता है. वो कॉस्ट बचाते नहीं है, पैकेजिंग की क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, और वहां पैकेजिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने पे वो लोग ज्यादा पैसा ले पाते हैं मार्केट से. दैट्स व्हाट इज द टिपिकल mindset that I have observed, and which is not wrong, which is absolutely not wrong. But I work with many SMEs, I work with many manufacturing concerns, infrastructure companies and all. जो infrastructure मतलब पैकेजिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, फिर वेयरहाउसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके साथ काम किया है, और हमें कहीं ना कहीं लगा है कि people do spend a lot of money even in packaging over and above their typical manufacturing concerns. और सर वेयर हाउसिंग के लिए भी एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि जैसे मेरा जो सेटअप है वो गांव में है, वो वहां से मुझे लॉजिस्टिक्स बहुत प्रॉब्लम होती है. इसलिए मैंने उदयपुर और अहमदाबाद में छोटे छोटे स्पेस ले रखे हैं, वहीं पे अपना सामान पहुंचा के पैक, मतलब मशीन जो भी मेरी बनी या जो भी सामान बना पैकिंग मेरी गांव में होती है, वो स्टोर
सिटीज में रहता है, तो जिससे वहां से क्विक निकलने में आसानी होती है। क्विक निकलता है। नाउ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, जिनका भी प्रोडक्ट ड्रिवन है, देयर आर नाउ वेयरहाउसेस, देयर आर लॉजिस्टिक कंपनीज इन इंडिया who have started working on a model on a revenue share basis. मतलब आपको वेयरहाउस में जब तक माल पड़ा रहता है, माल निकलता नहीं है, तब तक वेयरहाउस का कैरिंग कॉस्ट आपको नहीं लगता है। आप जब सेल करते हो तब सेल के ऊपर आपको परसेंटेज देना पड़ता है वेयरहाउसिंग कंपनी को। तो नाउ दिस इज अ गुड मॉडल जहां पे आपको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट तो है जिसने में आपने रॉ मटेरियल किया है, बट आपका फिनिश गुड्स अगर 6 महीने तक बिकता नहीं है, जैसे डॉक्टर एहसान ने बताया कि 6 महीने तक बिकता नहीं है, तो दैट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ अ स्टॉक एंड इन्वेंट्री बिकम्स लिटिल बिट ऑफ एन इश्यू। तो आप कोई भी वेयरहाउस ओनर है, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर लो और वो लोग रेवेन्यू शेयरिंग लेते हैं, तो विच इज अगेन अ गुड मॉडल वेयर यू नो वी कैन रिड्यूस द बर्डन इनिशियली एंड वी कैन ब्रिंग मोर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट। अगर कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपका हो सकता है मार्जिन कम हो जाए, पर सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज क्रिएटेड बाय कीपिंग इन माइंड द स्टार्टअप्स इकोसिस्टम व्हिच हैज डेवलप्ड इन इंडिया। सो गाइस, आई विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा था कि हाउ कैन वी क्रिएट अल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सो व्हेन वी वर अ VC, venture capitalist, we have invested in one startup, a startup called Cycle Chalao from Pune. Now, it was a bicycle sharing mechanism in the dense population of Pune city. Now, in the dense population of Pune city, you will have to invest that is as a startup. Just understand the business model, how it has evolved. Probably you will understand how business models can also be drafted. So, Cycle Chalao has invested into making cycles. Now, cycles are essentially 10,000, 12,000. They have partnered with Atlas company. Atlas company has created some cycles, bicycles. Then they went and spoke to Pune Municipality Council or Corporation, sorry, PMC. They asked, we need some land because we are coming up with this model. Pune Municipality asked, why this model? They say, because we are putting up in the center of the city where traffic congestion will go down, right? Your fuel consumption will also go down. People will have a better health also. And it will not take too much of space also on the road. So road congestion will also go down. So all those things. Pune Municipality said, okay, we will support it. What do you want? So they said, जहां से oil की lines जाती है, intersections है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मना करता है। यू कैन नॉट मेक एनी परमानेंट स्ट्रक्चर ओवर दैट, बिकॉज कभी भी ऑयल में लीकेज या ऑयल में कोई भी स्पिलेज या कुछ भी होता है तो यू हैव टू ओपन दैट। तो IOCL, BPCL के सबके वो लाइनर्स जाते हैं तो उसके अंदर ये इश्यू रहता है। तो दे सेड ऑयल लाइंस वाली जो जगह है, ऐसी 6 जगह वो बोलते हैं कि आप दे दो, तो दे दी। वहां पे साइकिल्स लेके आए एटलास की। साइकिल के ऊपर उन्होंने और एक कंपनी को बोला कि आपके नाम का आगे में छोटा सा बोर्ड लगा दूंगा कि इट इज ऑल्सो को स्पॉन्सर्ड काइंड ऑफ थिंग बाय यू। सो देन दे सेड कि ओके। तो वहां से उन्होंने थोड़ा पैसा लिया, साइकिल के ऊपर नाम लिखवा दिया। देन जहां पे वो लोग रखा था साइकिल को, एटलीस्ट आपको कहीं छोटे से टेम्पररी स्ट्रक्चर के अंदर रखना पड़ेगा, रात को साइकिलों को अंदर करके लॉक करना पड़ेगा। देन दे सेड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फाइबर का, टेम्पररी स्ट्रक्चर विच कैन बी टेकन अप इन 2 to 3 hours मैक्स। दे सेड दैट्स फाइन। तो वो स्ट्रक्चर बनाया।
अभी जैसे ही वो स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा था, इनको चाहिए था 100 स्क्वायर फीट की जगह 150 स्क्वायर फीट की जगह 10-12 साइकिल रखनी थी एक जगह पे, ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो बोलते हैं कि हमारे पास 300 स्क्वायर फीट की जगह है, व्हाट टू डू? So then we calibrated कि why not we go and speak with the Amul guys. जो जगह थी वो जगह पे हमने छोटे छोटे अमूल के पार्लर बनाने के लिए बात कर ली। Now 150 स्क्वायर फीट में अमूल के पार्लर भी बन जाते हैं। Now in the dense population of Pune city, जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक की समस्या है, ऐसी जगह पे अगर 6 अमूल को पार्लर मिल रहा है तो अमूल विल बी हैप्पी। अमूल से ठीक है, वी आर ऑन, और will not charge anything from you, will be in a profit sharing basis, franchising kind of model. आप सेल करो प्रोडक्ट, जो भी आता है उसमें से आपको इतना परसेंट मुझे दे रहे हैं। Started with that revenue. Okay, we didn't want it to. We were promoting the good health and good environment and all those things. So we were like, we will promote. Come have a milk. Come have a cup of coffee. Have a buttermilk. Have a lassi. But don't have aerated drinks. So we promoted that. Obviously, अगर डेंस पॉपुलेशन के आसपास रहते हैं तो काफी सारे लोग नजदीक में रहते भी है। अमूल का सेल भी बढ़ना शुरू हो गया। Then what we did? तो ये 6 प्रोमिनेंट प्लेसेस है जहां पे फाइबर का हमने बेस बनाया है। उसके ऊपर हमने होर्डिंग्स बना दिए और होर्डिंग की जगह भी हमने लीज करना शुरू कर दिया। मार्केटिंग कंपनी के पास गए, वो हमारा काम नहीं है। मार्केटिंग कंपनी के पास गए, वहां पे भी हमने मार्केटिंग किया। Now the primary source of this business was cycle sharing. I will ask you guys to come and subscribe for the cycles that you are going to use and for which I charge per month 100-200 रुपये। अब 10,000 रुपये की साइकिल बनी है, 100 रुपये अगर मैं मंथली लेता हूं तो साल में 1200 रुपये। 7-8 साल तक तो क्या मेरा साइकिल का खर्चा ना निकले, तब तक तो मुझे दूसरी साइकिल लेनी पड़े। तो क्या साइकिल में से मैं अर्न कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं। तो मैं कहाँ से अर्न करूंगा? I'll have to make money from alternative sources. और जब alternative sources से हम पैसा बना सकते हैं तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी एक अलग लेवल पे आती है। And then you are also in a position to afford. You are also in a position to give very, very good pricing to your customers. Though these are not direct revenue streams, but these are very, very big supportive revenue streams. And then you create a whole story around, we are reducing carbon footprint, and we are reducing traffic congestion. We are helping citizens to have a better health, and that's why we want now Pune municipality, government of Maharashtra, and other people to give us a donation by way of CSR and all those things, so that some of the capex or some of the opex kind of marketing can also be reduced. Will it not affect the focus on the product? Suppose you try to go for an alternative, the focus will be lost. No, sir. See, एक चीज है. What is my focus there? My focus is to attract customers so that people use my cycles. To attract customers, अगर मैं लोगों को बोलता हूँ कि अमूल का स्टोर भी है, यहाँ पे आप आ रहे हो और यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे अमूल के स्टोर पे, तो आई विल हैव अ मोर। फॉर एग्जांपल, आज ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, क्या वो लोग सिर्फ कंटेंट बेच के पैसा कमा रहे हैं? क्या कंटेंट एंड एडवर्टाइजमेंट इज द ओनली mode of money that they are making? Are we not aware about that all the tech companies are also considering the humongous revenue derived from the data that they are going to generate? Now, data generation and data analytics
is not for which IT companies are creating their businesses. But if in the process I am in a position to make some more money by way of data analytics and advanced tools, am I not making a commercial prudence over here? See, if I am completely going off late, if I am deviating from my core goal, if I am addressing the wrong audience, then yes, you are defocused. Let's say my product right now has been made specifically for the elderly people. And elderly लोगों के घर पे जाऊंगा और वहां पे मुझे बच्चे भी मिल जाएंगे तो मैं ये भी कर लूंगा. Probably that is a defocus. Customer मिल भी रहे, but that is still a defocus. क्योंकि my focus is elderly people of the family. But if I am saying in an affiliate manner, if I can create the whole ecosystem, which is a business model in itself, let me also tell you guys, I'm not sure, probably you may have created some alternative sources for your own business also. और जब तक आप वो नहीं करते हो तब तक आपके लिए डिफिकल्ट है सर्वाइव करना एंड ग्रो करना दोनों. So that's precisely the point is, right? Any question? So I had one thought and wanted to ask this as a question as well. Sure. I mean, you talked about earlier. You talked about having a bit of margin in the revenue model which is set up, right? Yeah. Sometimes sometimes what happens is that people generally ask for. I mean, the customer typically asks for, at least the startups, they ask for initial pilots which are free, and and they want to try out something, and we are kind of forced to give them freebies basically early on, which is not a very sound business model. How do you cater to this kind of situation? And what will be your suggestion for that? Okay. See, it's a very, very subjective on the product that you are working. But for example, I am giving you one example. One recent startup to whom I am mentoring right now. Now we have discussed, so they have created a nozzle filters. Now, if you guys, anyone is from Delhi or anyone is aware about the situation of Delhi, probably starting from now, that is Diwali time, till maybe February or till Holi, the air is highly polluted. Now, anyways, we all are aware about, due to COVID, we all are aware about that, we have been asked to take a very, very filtered air. You have created nose filters. Young girls, same position. Everyone is asking, पहले 100-200 तो आपको फ्री में देना पड़ेगा. अगर आप फ्री नहीं देते हो तो लोगों को मालूम चलेगा कैसे कि प्रोडक्ट अच्छी है. तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल के थोड़े अलग कंसेप्ट्स आते हैं. एक मैंने बोला कि कैन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है उसको वो आप प्रोटोटाइपिंग में यूज कर सकते हो, और एक्सेलरेटर आपको जो शुरुआत का पैसा देता है क्या वहां यूज कर सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, दिस इज फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ दिस थिंग. Try go and pitch to some of the corporates in Delhi कि हमारा कॉस्ट जेन्युइनली बताओ कि हमारा कॉस्ट 250 रुपी है और हमें अभी ये 250 में ही देना है फॉर ट्रायल. अभी आप ये सोचो कि आपके कॉस्ट के इक्विवेलेंट भी देने के लिए लोग मना करते हैं, तो विच एसेंशियली मीन्स कि अभी भी आपके प्रोडक्ट में क्या कोई इश्यू है, क्या फिर आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इश्यू है. बिकॉज आई एग्री विथ यू
it is not a very sound business policy. If you have a money to penetrating a market, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप ये करना चाहते हो शुरुआत के टाइम में, जहां पे आपको ये भी मालूम है कि इन्वेस्टर सेड कि 250 रुपए की चीज है, ठीक है, आई विल फॉरगेट 2,50,000, बट 1,000 पीस आप मार्केट में बेचो और मुझे उसका रिपोर्ट बना के दो कि क्या आउटकम है. मे बी यू कैन डू दैट, ठीक है, बिकॉज देयर यू हैव सम मनी अवेलेबल. बट अदरवाइज आई स्ट्रांगली से डोंट फॉल फॉर दैट, क्योंकि लोगों के लिए मांगना बहुत इजी है, राइट. हमें मालूम है कि हमने किस तरह से पैसा अरेंज करके ये प्रोडक्ट बनाए हैं, और आप ये सोचो कि आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो उसको कि वो एटलीस्ट आपको कॉस्ट की इक्विवेलेंट दे दे, और आपको आपकी जेब से क्यों देना पड़ रहा है. अगर एक बंदा कन्विंस नहीं होता दूसरे को करो, दूसरा नहीं होता तीसरे को करो, बट आई विल से फोकस ऑन कन्विंसिंग अ पर्सन टू एटलीस्ट गिव योर कॉस्ट, एंड आई विल ऑल्सो से कॉस्ट प्लस सम मार्जिन. Your cost is best known to you. You don't have to tell it to anyone. 250 रुपए की चीज genuinely बन रही है, 350 की भी कॉस्ट बता सकते हो. See, I don't say to cheat anyone, but this is a business practice that we have to adopt to a certain extent. That's what is my understanding, Animesh. No, I think good point, sir. I think I will take. Thanks for that. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Anyone else? So far, I have covered 7 points. Next 2 points are going to take the maximum time. Next two points are going to get me to a lot of questions also. So first, let me just repeat these 7 points. अगर कोई भी question है, कोई भी discussion points है, तो I am open. And then for last half an hour, I just discuss on the next. Compared to others, yes, it is good. Problems and solutions. Myself, Shana. Yeah, Shanas. So, sir, we are actually inventor, designer of AI-enabled page management devices for crop protection. तो सर इसमें क्या हो रहा है, जैसे अभी डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, तो अगर हम उनको सेल कर रहे हैं, तो उसमें जो है जैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन 30% या 33% रख के हम जो है कस्टमर्स को डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, राइट. और अगर हमें वही चीज जो है B2B प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, तो वही 33% मार्जिन जो है लाइक B2B सेगमेंट में जैसे कॉर्पोरेट कस्टमर्स है या फिर FPOs है, तो उनके लिए रखा है. और 30% जो है वो ओवरहेड और कैपेक्स ये सब चीज़ों में आ गया. तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी हम सोशल मीडिया में जैसे ये करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि प्राइस जो है आप मतलब सोशल मीडिया में आप डायरेक्ट बता दो कि क्या है. तो वो केस में क्या होता है, फिर अगर हम डायरेक्ट प्राइस बताते हैं तो मतलब जैसे ये B2B के जो कस्टमर्स हैं हमारे, जैसे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी वॉच आउट कर रहे हैं कि हम कौन सी प्राइस दे रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हम मतलब कैसे डील करें कस्टमर्स के साथ, डायरेक्ट कस्टमर्स प्लस B2B कस्टमर्स. See, दो चीज. Then you can't confuse them. Simple. I talk hardcore business. B2B corporate customers है, वहां पे अगर आप प्रोडक्ट देते हो, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि B2B के अंदर हम इतनी सर्विसेज दे रहे हैं. B2B का पैकेजिंग मैंने बताया आपको, पैकेजिंग अलग कर दो. B2B के अंदर आप सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कर दो. आप ये बोल सकते हो कि B2B में हम इतना देते हैं. योर मार्जिन्स आर मोर इन B2B कंपेयर टू B2C, राइट? ये B2B में कम है. B2B में 33% और B2C में ज्यादा मार्जिन है. ठीक है. तो आप ये कर सकते हो कि B2B है जहाँ पे बल्क बाइंग है. बल्क बाइंग आपकी प्रोडक्ट बल्क में जाती है सर.
तो बस सिंपल कर दो ना, कस्टमर एक बंदा तो बल्क लेगा नहीं। राइट। हाँ, तो बल्क बाइंग है इसलिए हम ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, आज एक ही चीज है ना, हम अगर इंडिया मार्ट पे जाते हैं, इंडिया मार्ट पे जाके अगर कोई चीज परचेस करते हैं, वी रजिस्टर अवर सेल्फ एज अ मर्चेंट, ठीक है, और वहां पे जाके मैं परचेस करता हूँ तो लोगों को क्या लगता है कि आई एम बाइंग इट फॉर सेलिंग इट फर्दर, आई एम अ ट्रेडर, तो मुझे मार्जिन का बेस होना चाहिए। तो B2B में मुझे किस लिए तो मुझे प्राइस कम मिलता है, और B2C में वही चीज मुझे क्यों प्राइस के साथ मिलती है, बिकॉज मार्जिन ऐड होता है। तो कस्टमर को बोल दो कि इफ यू आर अ कॉर्पोरेट, कम विथ योर कॉर्पोरेट पैन कार्ड एंड कम विथ योर कॉर्पोरेट GST, में GST का आपको बेनिफिट भी मिलेगा, तो कम विथ कॉर्पोरेट GST एंड कॉर्पोरेट पैन कार्ड, वी विल गिव यू this price, because then they are B2B customers for minimum number of this many chips, for example. तो आपने क्वांटम रख लिया, इंडिविजुअल कस्टमर आके बोलेगा ही नहीं कभी कि मुझे ये क्वांटम चाहिए, तो उसको इंडिविजुअल प्राइसिंग। आज हम सबको मालूम है ना कि एक प्रोडक्ट मार्केट में जाके खरीदते हैं और 10 प्रोडक्ट खरीदते हैं, डेटा में 10 प्रोडक्ट का बंच लेने पे हमें कितना फायदा होता है। बस यही चीज हमें लोगों को पता नहीं है तो बता दो, चलेगा, ठीक है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, और वो लोग अगर बोलते हैं कि मैं बल्क बाई करना चाहता हूं तो करो, मेरे B2B कस्टमर बन जाओ, बल्क बाई करो, बिकॉज देन यू नो कि बल्क बाई के अंदर आपका मार्जिन कम है बट आपको कैश फ्लो ज्यादा मिल रहा है एक साथ। तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, यू कैन ऑलवेज डू दैट, राइट। फिर भी दिस इज अ वेरी कॉमन suggestion I am giving. It's always good that we get on to the specifics of the product and then we decide, because these are very common strategies which are universal to all. अगर आपके related specific है तो maybe we have to discuss it separately and then we can discuss, take it forward. Yeah, take it offline. Sure. Yeah, thank you so much. Sure. But thanks, nice questions. Anyone with any observation, any question? Otherwise, next and most important. मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा लीक से थोड़ा सा हट के है। जैसे आपने B2B बात किया, B2B जी सर, ये बेसिक डिफरेंस B2B और B2C में क्या है सर? सर एज ए बिजनेस आप डायरेक्ट बिजनेस को सेल करते हो, बल्क में सेल करते हो, और कई बार आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हो, B2C, राइट। बिजनेस टू बिजनेस इज B2B, बिजनेस टू कस्टमर इज B2C, कंज्यूमर। तो जब बिजनेस टू कस्टमर जाता है तो कस्टमर या कंज्यूमर एक बंदा, फॉर एग्जांपल एप्पल वाले एप्पल के स्टोर को जो देंगे वो B2B ट्रांजैक्शन होगा, बट आपको इंडिविजुअली डॉक्टर एहसान को जो देंगे वो B2C ट्रांजैक्शन होगा। सर जैसे मैं अपना माल वाया अमेजन को दे रहा हूँ तो मैं B2B कर रहा हूँ, B2C कर रहा हूँ? सी अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस जहां पे आप अपने आप को लिस्ट कर रहे हो। आप अमेजोन को बिलिंग करोगे तो B2B हुआ। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बिलिंग करोगे वाया अमेजोन तो अमेजोन इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, बट आप डील कर रहे हो डायरेक्ट कस्टमर के साथ, ठीक है, तो B2C हो गया। अगर आपका बिलिंग अमेजोन को हो रहा है तो B2B, अगर आपका बिलिंग लेट से मुझे हो रहा है, संकेत शाह को हो रहा है तो B2C, सिंपल, ठीक है। बिलिंग के ऊपर जाता है, और बिलिंग के क्वांटम, बिलिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सबको ध्यान में रख के B2B और B2C की स्ट्रेटेजीज अलग रख सकते हो, क्योंकि B2B में सर्विसिंग ज्यादा चाहिए, B2B का एस्पेक्ट अलग होता है। B2B में आपको इतना अच्छा पैकेजिंग भी नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग फर्दर पैकेजिंग करके बेचने वाले हैं, whatever, दैट इज B2B कंडीशन। B2C की कंडीशन कंप्लीटली अलग होती है। तो अच्छा सर एक चीज और है, कभी कभी हम लोग को ऐसे भी कस्टमर मिलते हैं जो सीधे बोलते हैं कि GST नहीं चाहिए, GST के बिना आप बेचो, तो दैट इज रॉन्ग ना, एक्चुअली एथिकली इट्स रॉन्ग। मतलब वो कहते हैं कि वी विल नॉट गोइंग टू पे GST, 18% GST नहीं दूंगा। सर दो चीज होती है, ठीक है। वो कस्टमर ऐसे होंगे जिनको आगे क्रेडिट नहीं मिल रही है, ये ऐसे कस्टमर है जिनका खुद का बिजनेस 20 लाख से ज्यादा का नहीं है या 40 लाख से ज्यादा का नहीं है। अभी उनका खुद का बिजनेस रेवेन्यू इतना नहीं है तो उनको GST आता है, नहीं आता है। तो क्या होता है कि आज 1 लाख रुपए का बिलिंग होता है तो 1,18,000 रुपए का खर्चा उनका हो जाता है, 18,000 रुपए उनके लिए खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि एहसान साहब क्या आपके पास कोई ऐसी एंटिटी है जिसमें GST नहीं लगता है, आप वहां से मुझे सेल कर दो ऑफिशियली,
बिलिंग पे करेंगे, इनकम टैक्स में भी जाएंगे, बट अननेसेसरी 18,000 क्यों पे करें? तो ये एथिकली गलत नहीं है। बट हाँ, अगर एहसान साहब बिल ही नहीं बनाते हैं तो गलत है। तो मतलब सर बिल कैसे बनाना पड़ेगा? ये आप सीए भी हैं तो आप हमें ये फिर बताइए। दो चीजें, कौन सी एंटिटी से बिल बनता है अकॉर्डिंगली बात होती है। आपकी जो एंटिटी जीएसटी के साथ है उसमें तो जीएसटी कंपलसरी है। जी सर। बट अगर आपके पास कोई ऐसी भी एंटिटी है, ट्रेडिंग एंटिटी, लेट्स से आपकी एक एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग की है, आपकी एक एंटिटी ट्रेडिंग की है, आपकी एंटिटी लोकल बिजनेस के लिए है, आपकी एक एंटिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अगर आपने अलग अलग एंटिटीज बनाई है, कोई एंटिटी ऐसी होगी जिसके अंदर अभी आपका 40 लाख का टर्नओवर नहीं हुआ है, तो विदाउट जीएसटी का बिल आप वहां से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो सी टेक्निकली रॉन्ग करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा, बट अगर आपके पास 2-3 एंटिटी है और अगर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो तो टैक्स प्लानिंग करना कोई गलत बात नहीं है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अलाउइंग यू टू डू दैट। टैक्स प्लानिंग करो, टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। ओके। हाँ, तो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास कोई एंटिटी है तो इस तरह से हो सकता है। सी एनरोलिंग इनटू कैश ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉन बिल्ड इज रॉन्ग, बिकॉज देन इट इज कंप्लीट अ ब्लैक ट्रांजैक्शन। आपको स्टॉक मैनेजमेंट से लेके रॉ मटेरियल इनपुट आउटपुट से लेके आपके ट्रांजैक्शन के टैक्सेशन के ऊपर से लेके हर एक लेवल पे आपको दिक्कत आएगी। बिल बनाना चाहिए। तो बिल तो बनाना चाहिए, ऑफिशियल बिल बनाना चाहिए, अकाउंट फॉर होना चाहिए और लीगल बिल ही बनना चाहिए। जस्ट आपके पास अलग अलग एंटिटी हो सकती है जिसमें किसी में जीएसटी एप्लीकेबल है, किसी में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, राइट? So then technically you are not doing anything wrong. कंपोजिट जीएसटी, Sorry? कंपोजिट जीएसटी में यूज कर सकते हैं क्या? Sir, honestly speaking, I'll not comment on this because I don't practice as a chartered accountant. So GST का बहुत ही डेप्थ नॉलेज मेरे पास नहीं है। मुझे बेसिक समझ में आता है, मेरे पास डेप्थ कोई भी नहीं है और मैं खुद मेरे खुद के जीएसटी के रिटर्न में से किसी और सीए से भरवाता हूँ। आई एम फोकस्ड ऑन टू वेंचर कैपिटल इक्विटी फंडिंग, सो सॉरी आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस जंक्चर एंड एटलीस्ट आई डोंट वांट टू गिव एन आंसर वेयर आई एम नॉट श्योर, सो बेटर टू आस्क द जीएसटी कंसल्टेंट, राइट? थैंक यू। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको अभी तक जो पॉइंट्स बताए, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, नीड फॉर द सॉल्यूशन, कॉम्पिटिटर्स, इंडिगो वे, राइट? कस्टमर एंड कंज्यूमर सेंट्रिक, कैश फ्लो इज द किंग, राइट प्राइसिंग, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, पर्टिकुलरली ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम, ये 7 पॉइंट हुए। अभी 8वां पॉइंट इज राइट फंडिंग। दिस इज अ वेरी वेरी डिबेटेबल पॉइंट। फंडिंग इज नॉट डिबेटेबल, राइट फंडिंग इज डिबेटेबल। पर वो असरटेन कैसे करें? So anyone has taken any money from any investor so far? Anyone? खुद का पैसा लगाया है, वेरी गुड। अगर इंक्यूबेटर से या गवर्नमेंट से आया है, वेरी गुड। इन्वेस्टर के पास जाके इक्विटी डाइल्यूट करके कोई पैसा लिया है? चलो फ्रेंड से लिया है किसी ने? Anyone who has tried? Probably. Friends and families we have raised fund. Okay, how have you raised the fund from friends and family? Can you please share your experience? Just want to know, not to criticize it at all. Yes, sir. At some point of time, like earlier, I was into corporate, but eventually there was a point of time when I was low on liquid cash, so I diluted around 7% of my company stock, and I borrowed money from my friends and families. Okay. So they are still holding stock in my company. You're holding some stock in your company, 7%. Okay. Okay, fantastic. So just एक आपको बेस बताता हूँ। जब कोई फ्रेंड फैमिली के साथ लेने जाता है ना, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादातर होता है इंडिविजुअल के ऊपर कि ये धंधा कर रहा है ना, चलो आई वांट टू सजेस्ट, आई वांट टू सपोर्ट, आई वांट टू इन्वेस्ट। इक्विटी ठीक है, जितनी मिलती है उतनी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
But when you go to angel investor, when you go to seed investor, venture capitalist, the importance is कितना पैसा मांगना चाहिए. अब माना ऐसा जाता है, हर एक का बिजनेस के बारे में हर एक बंदा एक ही चीज बोलेगा, जितना पैसा दो उतना ग्रो करेंगे. डू यू एग्री? जितना पैसा दो उतना ग्रो करेंगे. तो जितना कितना, और कोई वैल्यूएशन वाला या कोई भी बंदा आएगा तो वो आके बोलेगा जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा वैल्यूएशन आएगा. क्यों? क्योंकि पोस्ट मनी वैल्यूएशन करना है. प्री मनी पैसा आएगा, उसको यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा वैल्यूएशन. तो ये भी सही फंडा है, मतलब ज्यादा लेना चाहिए. नो, यू शुडंट. अब दूसरा फंडा आता है, बेयर मिनिमम लेते हैं. तो व्हाट इज बेयर मिनिमम? तो अभी हमारा मंथली 3-4 लाख रुपए का शॉर्टफॉल हो रहा है, और अगर इसी तरह हमारा ग्रोथ होता हुआ तो 6 महीने में तो हम आई थिंक सरप्लस में आ जाएंगे. तो 6 महीने के 3-4 लाख के मुताबिक लेट्स से 25 लाख रुपए ले लेते हैं. हो गया अपना काम. तो क्या इस तरह के कंप्यूटेशन से आप पैसा ले सकते हो? नहीं. तो कैसे लेना चाहिए पैसा? बिजनेस मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, पैसा कैसे लेना चाहिए. आप फंड कहां से लाओगे? अगर फंडिंग नहीं मिलेगा तो बिजनेस मॉडल यहाँ का यहाँ रह जाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा. लिक्विड प्रॉब्लम्स आएंगे बिजनेस के अंदर. डेट लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, इक्विटी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट से जाके ग्रांट मांगना पड़ेगा. अगर देते हैं तो वो भी ले लेंगे, सब कुछ करेंगे. Do you agree? But what is the right amount? So let me tell you, the right amount is you define your path for next minimum 5 years. आप 5 साल तक क्या करना चाहते हो? पहला पॉइंट, what you want to do for next 5 years. सेकंड पॉइंट, आप जो करोगे उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा. अगर लिख सकते हो तो लिख भी लेना, मैं जो आपको बता रहा हूं वेरी वेरी प्रूवन फॉर्मूला है ये, और मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा स्टार्टअप को इसी तौर पे पैसा दिलवाया है. 5 साल का प्लान, क्या रेवेन्यू आपका बन पाएगा. देन 5 साल तक का आपका इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर कितना होगा. इंक्रीमेंटल इसलिए बोल रहा हूं कि लोग इसमें ना गफलत करते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते हैं, हर महीने बताते हैं कि मैं हर महीने अभी 100 बेच रहा हूँ, फिर 120 बेचूंगा, 150 बेचूंगा, 200 बेचूंगा, तो हर महीने रेवेन्यू बढ़ेगा. बट एक्सपेंडिचर की बात आती है ना, अभी मंथली मेरा 3 लाख का खर्चा होता है, 12 महीने का 36 लाख रुपए, और 5 साल का 1 करोड़ 80 लाख, खत्म. ऐसा नहीं है. हर साल सर्टेन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज. आपका नया रेवेन्यू लाने के लिए आपको नए लोग चाहिए, नया मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ेगा. तो यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर रियलिस्टिक. 4, ये तो सस्टेनेबल मॉडल हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे वही प्रोपोर्शन में एक्सपेंस करेंगे. व्हाट इज योर एक्सपांशन प्लान इन दिस 5 years? उसके लिए कितने पैसे चाहिए, फंड्स नीडेड. रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक तीनों सिनेरियो आपको देखना है. इससे आपको मालूम चलेगा कि आप जो बोल रहे हो वो करने के लिए व्हाट इज द शॉर्टफॉल.
और ये जो शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल पहले 18 महीनों के अंदर आपको सर्वाइवल स्टिक पे ले आ जाना चाहिए। मतलब उसके बाद आपको पैसे बाहर से रेज ना करना पड़े, जिसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज द रनवे रिक्वायर्ड। तो 18 महीने का रनवे होना चाहिए, या पैसे दो 18 महीने तक हम आराम से, और कुछ नहीं चाहिए होगा, हम ये सब कुछ डेवलप कर लेंगे और हम सस्टेनेबल हो जाएंगे। ये राउंड की इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी। जस्ट इतना आप प्लान कर लोगे, आपको एग्जैक्ट गैप मालूम चलेगा कि इतना गैप चाहिए, इतना पैसा चाहिए, और इतना ही पैसा हमें रेस करना है, प्लस माइनस 5-10% फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी इज ओके। बट 3 सिनेरियोस, ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक इज मस्ट। जब ये 3 सिनेरियो पे काम करते हो, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक, 5 साल का प्लान बनाते हो, रीजनेबल ग्रोथ ऑफ बिजनेस, रीजनेबल ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंशन प्लान इन प्लेस। जैसे एक सिटी में कर रहे हो 5 सिटी में करोगे, एक प्रोडक्ट कर रहे हो 5 प्रोडक्ट करोगे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो एक्सपोर्ट करोगे, जो भी आपके दिमाग में वो आपने सोचा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के आपको मालूम चला कि इतना शॉर्टफॉल आ रहा है। ये शॉर्टफॉल आपको अगले 18 महीनों के अंदर सरप्लसेस में लेके आना है। उसके लिए पैसा रेज करके इमीडिएट एक्शन प्लान पे जाना है और रेवेन्यू जनरेट करना है टू द ट्यून के 18 महीने के बाद आई डोंट हैव बॉटम लाइन गैप। अगर ये कर दिया तो बिलीव मी, ठीक है, आपके इन्वेस्टर को मिनिमम 5 साल में 5x रिटर्न मिलेगा। प्रूवन है, प्रूवन। I'm not sure how many of you have understood this. समझ में किसको आया मुझे मालूम नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये चीज अगर समझ गए, बिजनेस मॉडल का क्रक्स आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, जिसमें प्राइसिंग भी आ गया, कस्टमर एक्विजिशन भी आ गया, कस्टमर मैनेजमेंट भी आ गया, ग्रोथ प्लान भी आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया। अगर ये चीज आपने क्लियरली समझ ली, बिलीव मी योर बिजनेस मॉडल कैन नॉट बी रॉन्ग। All are projections. ऑल आर प्रोजेक्शंस, यस, बट रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस, बहुत ही सोच समझ के, फिगर लिखने के लिए नहीं, समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट करने, इम्प्लीमेंटेबल, ठीक है। एक भी फिगर, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन करे और आपके पास आंसर ना हो। लीनियर ग्रोथ नहीं होता, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है। हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखा देते हैं, यहां से यहां चला एक साथ, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, सीधा ड्रैग कर लेते हैं। एक्सेल पे काम करते हैं ना, यही सीखते हैं, नहीं चलेगा ये। Sir, I have a question. प्लीज। Sir, see, we have innovation which is totally out of the box. ओके, Now, it's a chicken or egg problem. Unless otherwise we install some system in the market and get the validation, it will be difficult for us to get into the manufacturing and market. So this is what we need, a pre-operative expenses. Now, whatever the money resources we had spent all this thing to develop, because this is basically we have developed for farmers to make our farmers Atmanirbhar Kisan. राइट, Now, all the resources we have spent only in development because it was not an easy task for us to reach this stage. Now, today I am in the field for a field trial. I'm erecting one
solar irrigation pump without any type of motor, which has got many more advantage. In fact, it's a multi-purpose pump. Right. Now, unless I make 10 pumps and install in 10 challenging places, I will not get the validation. Right. Without validation, I cannot go for the manufacture and market. Right. So how do I address this issue? Two things. What you said is, I think, a similar kind of a question that, Animesh has probably asked. Kind of a freebies implementation. Now he asked a freebies चाहिए लोगों को. आप बोल रहे हो कि implementation करके result दिखाना पड़ेगा, तब तक के लिए 10 पंप आपको चाहिए और उसके लिए जितने भी पैसे थे आपने अभी तक यूज कर दिया और अभी आगे के लिए पैसे आपको चाहिए. अभी जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक आपको, और जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक आप राइट वैल्यूएशन नहीं लगा सकते, तब तक इन्वेस्टर के पास जाना भी डिफिकल्ट है. और उससे पहले हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो कम खत्म हो गए. नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ वैली ऑफ डेथ, जहां पे आपको कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो स्टेप आपको कन्वेंशनल मेथड पे नहीं मिल सकता. जैसे कि आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो उससे फार्मर्स को काफी बेनिफिट हो सकता है. यस, बिल्कुल. तो आपको जो लग रहा है वो चीज आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट CSR grants of people like Tata and many other companies, वहां अप्लाई करना पड़ेगा. उनको बोलना पड़ेगा कि ट्रायल करना है. Angel investors come with a very clear mindset of seeing whether I am making profit or not. They want to come at a commercial stage and I am at a pre-commercial stage. Right. There are a lot of government incentives which are available. Some bit of a loan that you can take on a personal name, may it be Mudra loan, may it be collateral free security के सामने जो लोन मिलता है CGT MSE के तहत SIDBI देता है, वो लोन up to 2 crore लोन मिल सकता है depending, but वो थोड़ा difficult है क्योंकि अभी हम revenue में नहीं है. You can go and make presentation to Shell Foundation, Tata Foundation, maybe IIT BHU can put you across to some of those people. Government के grants होते हैं, agriculture के अंदर नाबार्ड के सॉफ्ट लोन होते हैं. क्या नाबार्ड सॉफ्ट लोन देने के लिए तैयार है? What I am trying to say is कि conventional method of bootstrapping, then getting into pre-rev stage, some investor will see कि हाँ this is very good, then investor will get into, then you reach up to IPO because IPOs are nowadays in thing. Zomato के बाद खास, ठीक है. ये पूरा स्टार्टअप का एक चैनल हो गया. दूसरा चैनल हो गया स्टार्टअप है ही नहीं, सीधा बिजनेस में गए, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिवरेज की, बैंक के पास गए, बैंक ने डेट दिया और डेट से हम आगे बढ़े. बिजनेस किया, डेट रिपे किया और आगे बढ़े, और बिजनेस किया और डेट लिया, बस ये चक्कर में चलते रहे. ये दूसरा मेथड है फाइनेंसिंग का. और तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है विच इज नाइदर डेट नॉर इक्विटी. Either it is convertible debt or it is grant, CSR money. आप कई सारे in which companies, there are companies which are into agriculture field and they are big. अब उनको जाके बोल सकते हो कि मुझे इसके लिए स्पॉन्सरिंग चाहिए. पहले 10 इक्विपमेंट बना के इंस्टॉल करके मुझे MVP करना है. अगर वो हो गया, कंफर्म्ड हो गया, तो फिर उसके बाद मैं बेचूंगा. I am a sustainable business. And then if you say that CSR is helped, then point number 2 will be to go to social impact investors. As per SEBI category 1 के अंदर social venture funds करके कैटेगरी है. social venture fund की कैटेगरी जो है उसके अंदर आप social venture बन के जाके पैसा ले सकते हो, जहां पे return on investment, ROI expectation, IRR expectation is lower, is muted 10-12%. जबकि commercial venture में it can go up to 30%. So when we are saying that we are a social venture, we can go that also. So Thank you, sir. So probably these are probably some ways you can think of.
So what is crowdfunding, sir? Crowdfunding in India is possible in product, but not in equity. Crowdfunding is आपकी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आप प्रोडक्ट लोगों को बोलते हो कि आप मुझे पैसा दो एडवांस में, प्रोडक्ट बनाऊंगा और प्रोडक्ट मैं आपको भेजूंगा. लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए भी पैसा देते हैं. देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स, कैटो करके हैं, देन यू नो कैटापुलर करके हैं, and there are 2-3 more platforms. I need to see exactly. These platforms are doing crowdfunding in India, right? जहाँ पे What would be आपको- their expectation, sir? their expectation is return, that is product जो है, प्रोडक्ट बिकता है तो प्रोडक्ट का परसेंटेज उनको देना होता है. वो लोग इक्विटी नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ही लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है उसमें डिस्काउंट लेते हैं. If I am the customer and if I am using your product, then I take a discount, so my outgo is low. If I am not the customer and if I am paying you, then I want the commission. That's the kind of the expectations are there on crowdfunding platform. Thank you, sir. You're welcome. Right. So this is point 8 जो मैंने बताया. फंडिंग, एक्सेसिव फंडिंग नहीं होना चाहिए, कम फंडिंग भी नहीं होना चाहिए. आप 1 by 1 मल्टीपल राउंड ऑफ फंडिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं है. हर 6 महीने में बाहर जाके आप फंडिंग ला नहीं सकते. 2 साल का रनवे, 18 महीने से 24 महीनों का रनवे होना चाहिए. रनवे मीन्स तब तक ये पैसा मेरा इजीली चलेगा, उसके बाद मेरे बिजनेस से ही मैं सर्वाइव करूंगा. दैट्स द रनवे, राइट. एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक केयर ऑफ ऑल योर स्टेक होल्डर्स. बिजनेस मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक केयर ऑफ ऑल योर स्टेक होल्डर्स. ऑल स्टेक होल्डर्स मीन्स बिजनेस पार्टनर्स हो गए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, राइट, कस्टमर्स डेफिनेटली हो गए, गवर्नमेंट हो गए. अगर किसी के भी साथ पंगा लेते हो, अगर किसी के भी साथ यू आर नॉट जेलिंग अप प्रॉपरली, अगर एम्प्लॉइज का टर्नओवर रहता है, एम्प्लॉइज आपके साथ लंबे टाइम तक रहते नहीं, हर बार नए कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि पुराने कस्टमर दूसरी बार आते नहीं है आपके पास, राइट. तो क्या होगा? You will not be able to create a base. You will not be able to create a big business house, or maybe a good organization, or even maybe a good institution itself. What is important is you should definitely look at the growth prospects through all the stakeholders. You are in the world of business. The way we are social animal, the moment we are in business, we are business animal. We are surrounded by all the stakeholders. आप जिसके साथ भी डील करते हो, बैंकर के साथ डील करते हो, अगर आपका चेक बाउंस होने वाला है, बैंक के साथ अच्छे से बनाए रखो. अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो प्लान किया है वैसा नहीं होता, इन्वेस्टर के साथ बनाए रखो. ऐसा होना चाहिए कि आपको एग्जिट देना है पर इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं लेना है. वो बोलेगा मैं ही इन्वेस्ट करूंगा बट एग्जिट नहीं लूंगा. क्यों? क्योंकि मोर देन अ बिजनेस आई लाइक द पर्सन. बिजनेस इज गुड, इट शुड बी गुड. पहले 8 पॉइंट में हमने बिजनेस को बहुत रोबस्ट बना दिया, बट जब तक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन वो लेवल का नहीं है. एम्प्लॉइज आज अच्छा दिन है तो आपके साथ है, कल अगर बिजनेस में बुरा दिन आए तो भी वही लोग आपके साथ खड़े, रॉक सॉलिड. अगर कोई बंदा छोड़ के जाने की बात नहीं कर रहे, सामने से आकर अगर आपका एम्प्लॉय बोलता है कि सर अभी बिजनेस में सिचुएशन या मैम बिजनेस में सिचुएशन ठीक नहीं है, अगले महीने से हम 50% सैलरी लेंगे, आप बिजनेस प्रॉपर करो और फिर हमें ये सब बोनस के साथ दे दो, बट हम इसके लिए काम करेंगे. 8 घंटे की जॉब है, हम 12 घंटे काम करेंगे, बट वी विल वर्क. आपके क्रेडिटर्स आके बोलते हैं आपको चिंता मत करो, आपके पास पैसा पड़ा है, मतलब बैंक में पड़ा है,
That should be the trust that people should build in you. और अगर ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो बिलीव मी, बिजनेस ग्रोथ इज इनएविटेबल, होना ही है, कोई उसको काउंटर नहीं कर पाएगा। आपके एम्प्लॉइज आपके साथ खड़े हैं काम करने के लिए, आपके क्रेडिटर्स आपके सर पे आके नाच नहीं रहे हैं कि आप पैसा दे दो आज के आज। आपके सप्लायर्स 30 दिन और वेट करने के लिए तैयार है आपके साथ। और ये कब होगा? जब आपके इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, जब आपके पास पैसा है तो सबसे पहले लोगों को देते हो और फिर घर में ले जाने की नियत रखते हो। आप अगर आपके सारे सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रूथफुलनेस के साथ अगर आप आपके स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हो, मे इट बी इन्वेस्टर, मे इट बी बैंकर, मे इट बी एम्प्लॉइज, मे इट बी कस्टमर्स, मे इट बी क्रेडिटर्स, मे इट बी सप्लायर्स, मे इट बी गवर्नमेंट फॉर दैट सेक, अब ऑनेस्टली जाके ये सिचुएशन है मेरा और अब बताओ आप मुझे कैसे हेल्प करोगे? पीपल विल हेल्प यू देयर ऑल्सो। बट अगर आपको सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ करना है, अगर आपको इनएविटेबल बिजनेस मॉडल बनाना है कि जिसको कोई काउंटर ही ना कर पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप इनएविटेबल बन जाओ, आप वो सेंटर पॉइंट बन जाओ कि जिसके बिना ये बिजनेस मॉडल पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना ये लोग पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना ये स्टेक होल्डर्स पॉसिबल नहीं है। और अगर सारे स्टेक होल्डर्स आपके साथ हो गए, अगर आपके कस्टमर भी डिसाइड करते हैं कि अगर चीज लेंगे तो इधर से ही लेंगे, क्यों? आज आपको और मुझे सबको मालूम है कि टाटा की चीज हम परचेस करने से पहले एक बार नहीं सोचते। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लस माइनस भी होती है, अगर टाटा सन्स के अंदर साइरस मिस्त्री और रतन टाटा और टाटा ग्रुप के बीच में इश्यूज भी होते हैं, बट जो पिछले 100 साल से उन्होंने क्रिएट किया है ना ट्रस्ट, वो ट्रस्ट ऐसा है कि उनके बिजनेसेस गिर नहीं जाते, सर्वाइव कर जाते हैं। आज अगर यही चीज कोई दूसरे बिजनेस हाउसेस में हो तो स्प्लिट होता है, बिजनेसेस बंद होते हैं, स्टेक होल्डर्स इग्नोर होते हैं। और जब ये होता है ना, तब गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपके बिजनेस का मॉडल चाहे कितना भी अच्छा हो, ग्रोथ नहीं होगा। सो बिजनेस मॉडल का फंडामेंटल एक ही है, टेक केयर ऑफ एवरीवन, एवरीवन विल टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स विल मेक श्योर दैट यू मेक मनी आउट ऑफ इट। जिस दिन आप आईपीओ निकालोगे ना, यही स्टेक होल्डर्स अपने पास जितनी भी पूंजी होगी ना लगा देंगे आपके पीछे। क्यों? यू डिजर्व दैट। सो विद दिस गाइस, थैंक यू so much. It's 4:45. Over to you. You can ask any question. We can enter into any discussion. Still for next 15 minutes, I am here. And if possible, for whosoever, kindly start your videos and all. Let's see each other. Let's talk it out. And looking forward to have a further fruitful interaction with all of you. Very well said, sir. Thank you Very so well much. said. Anyone with any comments? Open to all. सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि Sure. कि इनिशियली स्टेज पर मतलब कि जितना ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स या फिर फंडिंग्स को जो जिनमें प्रेशर होता है कि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न दिया जाए, उनको अवॉइड करना या फिर एकदम ही यूज ना करना, क्या ये नुकसान है कि अच्छा है? See sir, किसी को भी अवॉइड करना तो कोई भी एंगल से लॉजिकल नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि शुरुआत का टाइम है, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा स्टेक की डिमांड है, गो कन्वे योर थॉट्स, व्हाई यू कांट गिव मोर स्टेक, व्हाई? सी हो सकता है कि 10 लोग ऐसा बोलेंगे कि आप जो कर रहे हो वो बिजनेस मॉडल गलत है। हैव फेथ इन योरसेल्फ, देयर इज नो पॉइंट। बट इग्नोर करने से क्या होगा मालूम है? जब आपको जरूरत आएगी, बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, जब आपको रिक्वायरमेंट आएगी तब
जो बंदा आज इंटरेस्ट बता रहा है वो कल भी बताएगा अगर आपने टाइम पे कम्युनिकेट किया है तो। ठीक है, मैं अगर मेरी कंपनी है, कल की ही बात बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी में मैंने एक इन्वेस्टर से पैसा मांगा था। इन्वेस्टर को लगा कि संकेत भाई इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको कम पैसे चाहिए होंगे, तो उन्होंने मैंने जो मांगा था उसका ऑलमोस्ट 25-30% लेस करके मुझे बोला कि इतने पैसों में आपका हो जाएगा, एंड दे वांटेड सम मोर परसेंटेज इन वन ऑफ माय बिजनेस। आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल। Yesterday I sit in Ahmedabad, the investor was from Baroda, I traveled down from here to Baroda, I conducted a meeting with them, stated कि सर मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो मैं पैसा मांग रहा हूँ ये सही अमाउंट है और इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स आगे आगे इतनी है। आप अगर मान रहे हो कि मेरा प्रॉफिट इतना होगा तो ये बिजनेस में मेरा इतना प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही बिजनेस कर रहा हूँ जहां पे आई एम लुकिंग फॉर the benefit of a customer where pricing is comparatively much lower than the competitors. तो मैंने बोला कि ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिटेबिलिटी का है तो सर शायद अभी के लिए प्रोडक्ट काम की नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ऐसी कोई प्रोडक्ट सोच रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट आ जाएगी जिसमें हाई मार्जिन की पॉसिबिलिटी है, आई वुड इन्वाइट यू एंड आई वुड गिव यू अ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन माय कंपनी। रिलेशन बनाए रखा है, मना भी करके आया हूं, क्योंकि कोई हमें कंपल्शन नहीं कर सकता कि हमारी कंपनी में किस तरह से बिजनेस होगा। अगर वो इंडिपेंडेंस नहीं है तो बिजनेसमैन कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। वो इंडिपेंडेंस तो चाहिए। हम अगर ग्राउंड पे खड़े तो हमें मालूम है कि रिक्वायरमेंट क्या है एंड विल एक्ट अकॉर्डिंगली। बट कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, अगर पैसे का जुगाड़ नहीं होता है तो शायद वही बंदे हैं, शायद 2-5% ज्यादा देके भी आप लेने के लिए तैयार हो जाओ जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आए। अवॉइड करोगे तो वो पॉसिबिलिटी निकल जाएगी। करेक्ट करेक्ट, राइट। सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कभी भी ना बोलने की छूट। आपकी प्रायोरिटीज आप डिफाइन करो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। बट अगर किसी भी स्टेक होल्डर के साथ, एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव स्टेक होल्डर के साथ अगर डिस्कशन किया है तो सारे डिस्कशंस को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके ग्राउंड जीरो पे लेके आ जाओ कि हाँ अब क्लैरिटी हो गई है, देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मैं पहले दिन से सीखा हूं। मैं वीसी था तब भी सीखा और बाद में भी सीखा। आई हैव मेट सम ऑफ द पीपल हु हैव बीन वेरी वेरी क्लियर इनफ इन टेलिंग कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारा धंधा पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, आई कैन नॉट फोर्स एनीवन टू अंडरस्टैंड माय बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन माय कंपनी। बट उस दिन मना किया था, आज तक मना कर रहा है कई सारे बिजनेस में, फिर भी हमारा रिलेशन ऐसा है कि वो मुझे 10 जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं उनको 10 जगह पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बस ये बनाए रखो, बिजनेस में कभी भी कोई भी बंदा काम आ सकता है। थैंक यू। You're welcome, sir. Anyone else? Okay. Startups, any more questions? Then over to you. Thank you, sir, for such an eye-opening session and the key insights and the practical examples that you shared with our startups. That's going to help them for a long time to come. Thank you once again, sir. And we will have sir once again in another session in legal and partnership with us. So we will share the details with you, sir. Before we sign off today's session, I would request all of you to turn on your camera. So I wanted to see your face, all of you. हाँ, मुझे मालूम तो चला, क्लास में तो बैठ नहीं सकता हूँ अभी आके। Yes, means right, we have to everything has make this become so much immersive virtual. and Yeah, everything has become so much virtual. So at least I yes, can, sir. see all the participants and interact with them. Thank you so much, guys. I hope you loved it. I hope you liked it. I hope you learn it. Right. I am all available. Okay, you can take my coordinates from. I will BHU. share it with them, sir. Right. And whenever you want, we can discuss. One more thing, अगर आपका business अच्छे level पे हो, we have got our own angel fund. We do invest regularly for different startup. अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टार्टअप पैसा लेने के लिए तैयार है और आपको पैसा चाहिए, you are most welcome. You can put across your point. Right. I have already discussed this with Sonal ma'am also, Sonal Shukla also.
And I told that we'll be entering into a comprehensive understanding with BHU, so that for all the startups, we can make our funds, our angels, our VC available, and you can get a right support, whatever we can from our side. But ultimately, ground पे जाके तो आपको ही काम करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे. That's the beauty of this cohort and these sessions. It's not just the learning experience, but you get support from VCs and angel investors like sir. So just don't take this session only for learning experience, but you should connect, and you should also use, like, have the optimum utilization of these sessions. So thank you, sir, once again. Thank you so much, guys. To have you, and we would soon host you again, sir. Thank you so much. Take care, everyone. Thank Have a you. nice time. Goodbye. Thank you, sir. Thank you.